So hello and a very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 25th October 2024 আৰু আজি আমি যোনটো আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিজিসলেশ্যনছখিনি হয় যোনখিনি আমি পঢ়ি আছিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফী বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ সেইখিনি বস্তু আমি চাম চ' উইল ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য লিজিসলেশ্যনছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট অ'কে চ' বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্টৰ যোনখিনি আপোনাৰ লিজিসলেশ্যনছ হয় সেইখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে মই আপোনালোকক এটা কৈছিলোঁ কথা যে দেৰ আৰ চাম ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন biodiversity and environment. Okay, so I mean the legislations of biodiversity and environment as well as geography and disaster management. But যদি চাই at the same time somewhere সিহঁতে coincide কৰে কাৰণ কিছুমান legislations যেতিয়া আপোনালোকে ধৰক এক্সামৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি পঢ়োঁ বা লিখে তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফীটো কেতিয়াবা ধৰক ৰেফাৰেঞ্চ হিচাপে এনভাইৰনমেণ্টৰ কিছুমান এক্টৰ কথা লিখিবলগীয়া হয় বা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টতো লিখিবলগীয়া হয় ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে এই তিনিটা টপিক আমি একেলগত লৈ আহিছোঁ তেনেকৈ ইকনমিক্সৰ আমি যেতিয়া আছাম ইকনমি পাৰ্টটো পঢ়িম আৰু চ' ইকনমিক্সৰ সেই পাৰ্টখিনি মই তেতিয়া ইকনমিক্সৰ লিজিসলেশ্যনছখিনি কমপ্লিট কৰিম চ' যিহেতুকে আমাৰ ক্লাছত এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফী আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ ধৰক অলমষ্ট শেষ হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট পাৰ্টটো বায়'ডাইভাৰ্চিটিটো শেষ হ'ল এনভাইৰনমেণ্টটো আমি পলিউশ্যন পাৰ্টটো চাই আছোঁ আৰু ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টটো আমি ফ্লাড দি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আছাম ফ্লাডৰ পাৰ্টটো চ' সেইকাৰণে মই ৰিলেটেড এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ঠিক আছে চ' আপুনি ভালকৈ কাইণ্ডলি লাষ্টলৈকে চাব এতিয়া চাওক আমি যদি চাওঁ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে আমি এইখিনি পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট পঢ়িম যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1927 পৰা যদি চাই দেন উই হেভ দ্য ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1865 তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট 1878 ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট পলিচি ঠিক আছে এই চাৰিটা কি হয় আপোনালোকৰ নামকেইটা অলমষ্ট একে হয়নে চ' ইণ্ডিয়ান ফৰেষ্ট এক্ট এটা 1927 65 তাৰপিছত 78 এণ্ড 52 ঠিক আছে বাট দিছ ইজ এ পলিচি তাৰপিছত যদি চাই ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট আছে আপোনাৰ 1980 এখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল যোনখন হয় 2023 এখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত যদি চাই ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন ৰুলছখিনি আছিলে যোনখন আপোনাৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট হয় 1980 তাৰ ৰুলছখিনি ইয়াত আহিছিলে 1981ত চ' এইখিনি আমি পঢ়িম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নেশ্যনেল ফৰেষ্ট পলিচি এটা আছে আমাৰ 1988ৰ ঠিক আছে এইটো আমি চাম তাৰপিছত শিডিউল ট্ৰাইব এণ্ড আদাৰ ফৰেষ্ট ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰিকগনিশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট বুলি কয় বা ইন শ্বৰ্ট আপুনি এনেকৈও ক'ব পাৰে ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট আপোনালোকে শুনিব ক'ৰবাত এনেকৈ লিখা থাকে শ্বৰ্টত FRA 2006 বুলি লিখা থাকে FRA মানে কি হয় ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 চ' ফৰেষ্ট ৰাইট এক্টখনতকে মানে আপুনি এনেকৈও ক'ব পাৰে যে শিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰিকগনিশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট ঠিক আছে তাৰপিছত এইখন এক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কম্পেনচেটৰী এফৰেষ্টেশ্যন ফাণ্ড এক্ট ঠিক আছে কেম্পা এক্ট বুলি কয় এইখন 2016ত আহিছিলে 2016ত চ' এইকেইখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু মানে কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ ভাগ থাকে তাৰ ভিতৰত ফৰেষ্টত যদি চাই কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ভিতৰত ফৰেষ্ট আহে আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন কাৰ পাৰ্ট হয় আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে চ' এনভাইৰমেণ্টৰ ভিতৰত কনজাৰ্ভেশ্যন আহে আৰু কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট টপিকটো আছে ফৰেষ্টৰ ভিতৰত এইকেইখন পাৰ্টিকুলাৰ বিল আৰু এক্ট কি হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ओके देन यहाँ पे आप देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड मतलब जो कोर एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड है पहले वाला कंजर्वेशन का क्या था एनवायरनमेंट का ही पार्ट था बोल सकते हैं फॉरेस्ट ये वाला मतलब कोर एनवायरनमेंट टॉपिक है ठीक है तो इसमें हमको क्या इंपॉर्टेंट देखना है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 ये वाला इंपॉर्टेंट है फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2023 को आया था ये इंपॉर्टेंट है और कोस्टल रेगुलेटरी जोन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया था आपका 2018 में ठीक है ये हमको देखना है फिर कंजर्वेशन में वाइल्ड लाइफ भी आता है वाइल्ड लाइफ के अंदर हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ़ यू सी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में ठीक है मैं ये भी बताऊंगा आपको एक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है CBD जब इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था ठीक है व्हेन इंडिया बिकेम पार्ट ऑफ द CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके बाद आपको पता होगा कि हर साल क्या होता है आपका COP होता है ठीक है अभी COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको अगर आपको पता है एक बॉडी था आपका यूनाइटेड नेशंस में एक्चुअली क्या होता 1992 में एक समिट हुआ था विच इज़ नोन एज रियो अर्थ समिट सो वो समिट्स हम अलग से पढ़ेंगे मैंने उसका टेलीग्राम में भी कुछ ये दिया है आपका मटेरियल दिया है आप पढ़ सकते हो वहाँ से सो रियो अर्थ समिट हुआ था ठीक है ये जब समिट मतलब कंप्लीट हुआ उसके बाद जो डिक्लेरेशन साइन होता है इसके बाद क्या हुआ दो मतलब कन्वेंशंस साइन हुआ था ठीक है एक है आपका UN इसको बोलते हैं CCD ठीक है और एक आपको पता है UNFCCC इसका मतलब क्या है यूनाइटेड नेशंस जो आपका मतलब ये है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका भी अलग अलग COP होता है COP मतलब उनका जो हर साल मीटिंग होता है इसको ही COP बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब पार्टीज जो है वो सिग्नेटरीज टू द UNFCCC दे सिट टुगेदर सो हर साल नवंबर दिसंबर में इनका क्या होता है मतलब मीटिंग होता है ठीक है सो अभी आपको पता होगा UNFCCC का जो समिट है वो होने वाला है और अभी जो है
ये दोनों जो साइन हुआ था 1992 में साइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब जो आपका सीबीडी हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बाद और एक आपका मतलब कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया, उसको बोलते हैं यूएनसीबीडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो ये एक नया बॉडी आया, ठीक है। सो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो है उस चीज़ को, उससे रिलेटेड जो मतलब इनिशिएटिव्स है वर्ल्ड लेवल में, वो सब देखते हैं। ये देखता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू डिजर्टिफिकेशन, मतलब जो लैंड डिग्रेडेशन है या डिजर्टिफिकेशन है, इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं वो लोग। और ये क्या है, ये आपका क्लाइमेट देखता है, ठीक है। ये सारे ये बॉडीज क्लाइमेट से रिलेटेड डिसीजंस बनाते हैं। दिस इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। सो जब इंडिया ने 2002 में इसको रेटिफाई किया था, सीबीडी का जो मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो क्या होता है, कभी कभी ये जब बॉडीज एक साथ बैठते हैं, देन ये लोग क्या करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको रेटिफाई करना पड़ता है, मतलब जो पार्लियामेंट है उस पर्टिकुलर कंट्री का, अगर वो डेमोक्रेसी है तो वो पार्लियामेंट में उस चीज़ को रेटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही क्या होता है, ये माना जाता है कि दैट पार्टी बिकेम और बिकम्स ए सिग्नेटरी टू द पर्टिकुलर कन्वेंशन, ठीक है। फिर इंडिया ने जब ये यूएन सीबीडी को रेटिफाई किया था, या सीबीडी को रेटिफाई किया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को किया था रेटिफाई। उसके बाद क्या हुआ, 2002 में ही, उसी साल इंडिया ने उस कन्वेंशन को मतलब फोर्स में लाने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट लाया, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका रिलेटेड है किससे, आपका जो हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं ना, जीएमओज, उससे रिलेटेड है। मतलब जैसे जीएमओ से रिलेटेड जो जो लॉज है, जैसे आप एक सिंपल मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को आपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, देन व्हाट विल हैपन, वो स्पीसीज अगर जो आपके इंडिजिनियस ब्रीड है, ठीक है, जो यहाँ पे लोकल ब्रीड है, इनके साथ अगर मिक्सअप हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक चांस है कि ये जो हाइब्रिड मोड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, ये इंडिजिनियस जो ब्रीड्स है उसको क्या करेगा, इट विल इम्पैक्ट दिस ब्रीड्स। इसलिए आपको याद रखना है कि जीएमओस को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। फिर इस साल एपीएससी में ये भी आया था क्वेश्चन, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स, इसको भी हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट हमने देखा था ये जब हमने जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको जब कंजर्वेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था असम में 2 बीचेस है, ठीक है, 2 बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। एक जो आपका बॉर्जुली, आपका बॉर्जुली, इसको बोलते हैं वाइल्ड राइस, ठीक है। और एक है आपका जो हाजोंग में है, हाजोंग टॉर्टोइस लेक, ठीक है, हाजोंग टॉर्टोइस लेक। तो बॉर्जुली वाइल्ड राइस और हाजोंग टॉर्टोइस लेक, ये दोनों क्या है, दीज आर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑफ असम। सो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ के अंदर। फिर रिन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड और सारी स्कीम्स है। एट प्रेजेंट मैंने इस पर्टिकुलर पीडीएफ में यही डाला है, बट आई विल एड मोर, ओके। सो पीएम कुसुम स्कीम पढ़ेंगे, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पढ़ेंगे। देन वी हैव द नया जो स्कीम है पीएम सूर्य घर योजना, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, और अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्कीम, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और ये सूर्योदय योजना, ठीक है। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल क्वांटम मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 स्टार देता हूँ, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि इंडिया का मतलब एक खुद का इनिशिएटिव है ये। सीडीआरआई जो है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये भी इंडिया का खुद का इनिशिएटिव था, ठीक है, इंडिया ने खुद शुरू किया था ये सीडीआरआई। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ये देखेंगे। फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसी 2022 जो सीसी मीन्स हुआ था 2022, इसमें आया था पंचामृत गोल्स के बारे में, ठीक है, रिवाइज एंड डीसी गोल्स बोलते हैं हमको। मतलब क्या हुआ, आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब हुआ था 2015 में, उसके बाद क्या हुआ, द ऑल द कंट्रीज वर आस्क्ड टू रिवाइज देयर गोल्स, ओके। जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी का मतलब क्या होता है, हर एक कंट्री को अपनी तरफ से मतलब कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स ग्लोबल स्टेज में दिखाना पड़ता है कि हम लोग इतने साल तक ये करेंगे, ये करने वाले हैं।
ठीक है, जैसे कार्बन को कम करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट को कम करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हुआ, इसको रेटिफाई करके दिखाना होता है, मतलब पहले दिखाना होता है, मतलब रेटिफाई करना होगा ऑब्वियसली, उसके बाद ये चीज़ें मतलब जैसे किसी कन्वेंशन के अंदर ये रेटिफाई होता है। ठीक है, सो इफ़ यू सी पंचामृत गोल्स कब रेटिफाई हुआ था, इट वाज रेटिफाइड इन द पर्टिकुलर COP26, जो UNFCCC का जो ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। ठीक है, सो UNFCCC क्लाइमेट से रिलेटेड है। इस पर्टिकुलर जब जो ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC, इसका COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 ये हुआ था आपका 2021 में। ठीक है, आफ्टर कोरोना, सो दिसंबर में हुआ था, राइट। सो इस पर्टिकुलर COP में क्या हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। तब इंडिया ने क्या किया था, अपना जो रिवाइज NDCs है, पंचामृत गोल्स भी हम उनको बोलते हैं, ये मतलब तब UNFCCC में प्रेजेंट किया था। ठीक है, फिर इंडिया का एक खुद का कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है। कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है मैं उसी टाइम समझा दूंगा जब ये स्कीम में समझाऊंगा। देन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। देन प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर असम रिन्यूएबल पॉलिसी, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी हम पढ़ेंगे। फिर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो जो चल रहा है असम में, वो भी हम अपडेट करेंगे। और सारा मुझे अपडेट करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, दिस इज़ फॉर द टाइमिंग। ओके, फिर मैं ये रिवाइज करके फिर इसको एक्सटेंड करने वाला हूँ, और सारे कुछ एक्ट्स रूल्स और इनिशिएटिव हो कुछ मतलब नए नए पॉलिसीज़ है, ये सब मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन के अंदर फॉरेस्ट। सो आज फॉरेस्ट देखेंगे हम लोग। फॉरेस्ट में पहला एक्ट हम पढ़ते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। सो देखिए, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 जो था, ये इसने क्या किया, जो प्रीवियस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, ठीक है, इसको क्या किया, उसको मतलब यू कैन से उससे ही मतलब इसको बनाया गया। ठीक है, उसके जो प्रोविजंस थे, सो 1927 से पहले क्या क्या थे, आप देखिए, ये थे ना, ये दोनों 1965 वाला, 1865 वाला और 1878 वाला, इन दोनों के मोस्ट ऑफ द जो प्रोविजंस थे, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इनको लाके 1927 वाले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में रख दिया गया। ठीक है, फिर अभी देखिए, जैसे आपका 1878 वाला था। ठीक है, सो जो इंडियन फॉरेस्ट उस टाइम पे अगर आप देखोगे, मतलब आज़ादी से पहले इन द कॉलोनियल एरा, द मोस्ट फेमस ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट जो उस टाइम पे था, वो क्या था, ये वाला। ठीक है, 1878 वाला क्या था, फेमस था उस टाइम पे। ओके, फेमस मतलब आप बोल सकते हो इसके प्रोविजंस बहुत अच्छे थे। सो अभी देखिए, बोथ द 1878 एक्ट एंड द 1927 एक्ट sought to consolidate and reserve the areas having forest cover or significant wildlife, to regulate movement and transit of forest produce and the duty of the uh, livable on timber and other forest produce। मतलब क्या था कि ये दोनों एक्ट जो थे, 1878 वाला फॉरेस्ट एक्ट और 1927, इसने क्या किया था, जितने भी आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, इन शॉर्ट टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है, और जो आपके मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो या कोई भी, जैसे फॉरेस्ट से हमको जो जो चीज़ें मिलता है, ठीक है, उससे रिलेटेड, मतलब उसके मूवमेंट से रेगुलेट, उसको मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए था। वाई, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते थे उस टाइम पे, आपको पता होगा कि जो फॉरेस्ट एरिया है, या यूजुअली दे यूज टू बी द ट्राइबल बेल्ट्स, सो वो लोग ट्राइबल बेल्ट से क्या करते थे, मतलब स्मगलिंग करके ले जाते थे। जैसे फॉरेस्ट वगैरह है तो उसमें ट्राइबल एरिया में घुस के लोग क्या करते थे, उसको कट के मतलब इसको काट के ले जाते थे। ठीक है, सो इसलिए इस एरिया को कुछ ना कुछ तो प्रोटेक्शन देना होगा, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारे फॉरेस्ट के जो लोग हैं, दे यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर और लोकल फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है 1878 और 1927, ये सब लाना पड़ा था। ठीक है, फिर दूसरा और चीज़ है 1927 वाले एक्ट में, कि इट डिफाइंस द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड व्हाइल डिक्लेयरिंग एन एरिया टू बी रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को, जैसे मैंने अभी बोला था, ये वाला एरिया को अगर हमने प्रोटेक्शन नहीं दिया, तो बाहर से लोग क्या करेंगे, रात को आके काट के ले जाएंगे सारे फॉरेस्ट को। ठीक है, सो बहुत सारे फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ इन पर्टिकुलर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इसको तो कुछ लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देना होगा, राइट, बिकॉज ये फॉरेस्ट सिर्फ एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, वो लोकल कम्युनिटी जो है उनके आस्था से भी बहुत सारे जुड़ा होता है। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं लोग, वो लोग यूजुअली पेड़ों को पूजा भी करते हैं, आपको पता है, राइट से। सो इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर करना था प्रोटेक्टेड एरिया। सो प्रोटेक्टेड एरिया मतलब इन द सेंस आप बोल सकते हो उसको रिजर्व फॉरेस्ट मान सकते हो आप। सो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ऐसे उन्होंने क्लासीफाई करना शुरू किया 1927 वाले एक्ट से। ठीक है, और दूसरा है, इट डिफाइंस व्हाट इज फॉरेस्ट ऑफेंस। सो फॉरेस्ट ऑफेंस क्या है, उसको डिफाइन किया। व्हाट आर द एक्ट्स प्रोहिबिटेड इनसाइड ए फॉरेस्ट है, क्या क्या मतलब आप कर सकते हो, जैसे आप बाहर से आए हो, सो इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग घुस गए, तो जैसे ये प्रोटेक्टेड या रिजर्व फॉरेस्ट या आप बोल सकते हो विलेज फॉरेस्ट है, तो इसमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या 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 करने से आपको वायलेशन होगा। ठीक है, ये सारे पेनल्टीज जो है
एवरीथिंग वाज रिलेटेड। ओके, सो ये सारे चीज़ें कौन देता था? ये आता था अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। सो if you violate the Indian Forest Act provisions of the violation I mean provisions of the Indian Forest Act 1927, then you will be penalized। ठीक है, मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे इसमें क्या क्या डेफिनेशंस था। देखिए, जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इसने क्या क्या था, आपके अलग अलग डेफिनेशंस रखा था फॉरेस्ट का। जैसे फॉरेस्ट क्या होता है, इकोलॉजिकल टर्म्स में देखा जाए तो फॉरेस्ट क्या होता है? एरिया डोमिनेटेड बाय ट्रीज। लीगल टर्म से देखा जाए तो जो जो एरिया उसमें पेड़ हो ना हो, एवरीथिंग हैज, जो अगर वो अगर डिफाइंड है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के, अगर मतलब किसी एरिया को, जैसे आप मान लो ये पर्टिकुलर एरिया ए है, इसको अगर हमने डिफाइन कर दिया, इसको अगर ये एरिया को हमने प्रोटेक्शन दे दिया अंदर 1927 एक्ट, तो ये क्या होगा? बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम ए फॉरेस्ट। सो इकोलॉजिकल डेफिनेशन हमारे हिसाब से क्या होता है कि कोई भी एरिया में अगर ट्रीज है तो वो फॉरेस्ट होता है। और लीगल टर्म्स में देखा जाए तो फॉरेस्ट किसको बोलेंगे? जो एरिया आपका फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंदर आएगा वो फॉरेस्ट कहलाएगा। और सर्वे के हिसाब से अगर देखोगे तो कोई भी एरिया कोई भी मतलब लैंड जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से क्या है, ज़्यादा है, और जिसका कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है, तो वो फॉरेस्ट कहलाएगा। कैनोपी क्या होता है? कैनोपी डेंसिटी मतलब आपको पता होगा, जैसे ये एक पेड़ है, ठीक है, बड़ा वाला, सो पास में और एक पेड़ है, तो कैनोपी डेंसिटी मतलब अगर ऊपर से आप देखोगे यू विल सी कि ये क्या है, इसका अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पेड़ है, तो इट इज़ नोन एज कैनोपी डेंसिटी। ठीक है, लेकिन किसी किसी एरिया में क्या होता है, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, तो कैनोपी डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत मतलब पास पास पेड़ है, तो उनका जो ऊपर टॉप वाला पार्ट है इसको कैनोपी बोलते हैं। सो कैनोपी डेंसिटी मतलब क्या हो गया? जैसे किसी एरिया में क्या है, बहुत सारे पेड़ है, तो वो आसपास रहेंगे एंड इट विल लुक लाइक दिस। लेकिन किसी एरिया में अगर ऊपर से आप देखोगे इट विल लुक लेस डेंस, राइट? सो कैनोपी डेंसिटी इसको भी बोलते हैं। और कैनोपी डेंसिटी का एक मेजरमेंट है, एक परसेंटेज है, जिससे अकॉर्डिंग टू द मतलब किस एरिया को आप लोग फॉरेस्ट बोल सकते हैं। तो सर्वे के हिसाब से अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो फॉरेस्ट के लोग सर्वे करते हैं ना, उनके हिसाब से क्या है, किसी भी एरिया, कोई भी अगर एरिया है, ठीक है, उसका मतलब कोई भी लैंड है, सॉरी, कोई भी लैंड है, अगर इसका एरिया जो है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा और जिसका कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होगा, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ फॉरेस्ट। सो ये है आपका फॉरेस्ट का मतलब सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक डेफिनेशन है। फिर जुडिशियल डेफिनेशन जो है वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, मतलब फॉरेस्ट क्या होता है, इट वाज डिफाइंड अंडर द गोदावर्मन केस। सो गोदावर्मन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट एक्सपांडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अभी हमने क्या देखा था कि फॉरेस्ट डोमिनेटेड बाय ट्रीज, जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 बोलेगा वही फॉरेस्ट होगा। फिर कोई भी एरिया का अगर कोई भी लैंड का अगर एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा या कैनोपी डेंसिटी क्या होगा, 10% से ज़्यादा होगा, वो फॉरेस्ट कहलाएगा। लेकिन इन सबको छोड़ के भी अगर देखो तो जुडिशियल मतलब गोदावर्मन केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है इसको एक्सटेंड किया, मतलब ब्रॉड किया। इसमें क्या बोला कि फॉरेस्ट क्या हो सकता है, फॉरेस्ट कैन इंक्लूड लैंड्स दैट वेर ऑलरेडी नोटिफाइड बाय द सेंटर एज फॉरेस्ट दैट अपीयर इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। जैसे आप मान लो कभी गवर्नमेंट ने, अभी ये 1927 एक्ट से पहले 1865 वाला एक्ट हो, 1872 वाला एक्ट हो, उसमें अगर किसी एरिया में, किसी एरिया को अगर फॉरेस्ट माना गया है तो उसको भी फॉरेस्ट हमको मतलब कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है 1927 से ही नया डेफिनेशन आएगा, जो पहले रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में है उनको भी फॉरेस्ट मानना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट अपीयर इन गवर्नमेंट फॉरेस्ट एज वेल एज दोज दैट फेल इन द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर देखेंगे डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए, आप कोई दूसरा मतलब डिक्शनरी देखिए, उसमें जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है फॉरेस्ट का, वो अगर मतलब मैच होता है तो दैट एरिया कैन बी टर्म्ड एज ए फॉरेस्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही डिफाइन करेगा, डिक्शनरी भी डिफाइन कर सकता है फॉरेस्ट को। इसका मतलब क्या है, जो गोदावर्मन केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेस्ट का डेफिनेशन क्या किया, इसको ब्रॉडन किया, उसको वाइड कर दिया ताकि मोर एंड मोर एरियाज कैन बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ, ये जो हमने पढ़ा है ये दो मतलब 1927 वाला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 एंड 1878। तो 1865 वाला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या बताता है, देखिए, उस टाइम पे जो इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसको इंपेरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते थे। ठीक है, और इट वाज सेटअप इज 1864। तो 1864 में इंपेरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप किया गया और इसका काम क्या था, इट हैड टू कंट्रोल द फॉरेस्ट। सो अलग अलग लेजिस्लेशंस लाते थे, जैसे इंडियन इंपेरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही ये पर्टिकुलर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 लाया था। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। और
अंडर दिस मतलब इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये पावर था टू डिक्लेयर एनी लैंड कवर्ड विद ट्रीज एज ए गवर्नमेंट फॉरेस्ट एंड मेक रूल्स टू मैनेज इट। तो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करते थे, जैसे उनको पता चला, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है ए और एक पर्टिकुलर एरिया है बी, ठीक है। तो ऐसा था पहले कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसको मतलब वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करते थे यहाँ पे, जैसे थोड़ा मतलब कम वैल्यू का जो ट्रीज है यहाँ पे, जैसे ज़्यादा वैल्यू का ए वाले एरिया में ज़्यादा वैल्यू का चंदन का लकड़ी है मान लो, और यहाँ पे क्या है, कम वैल्यू का जो ट्रीज है, ठीक है, कोई नॉर्मल और मतलब ट्री है। तो चंदन का ट्री का क्या होगा, इस एरिया में क्या होगा, इसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर एरिया को क्या करता था, रिजर्व फॉरेस्ट बोल देता था या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलता था अंडर द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। तो उनके पास ये पावर था, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या करते थे, ऐसे करने से हम ये सोचते हैं ना यूजुअली कि वो लोग प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, नहीं, एक्चुअली वो लोग अपना कमर्स देख रहे थे। वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि ये एरिया क्या है, ट्राइबल डोमिनेटेड है, इसलिए बाहर के लोग आके यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं काट सकते। लेकिन वो लोग खुद क्या करते थे, खुद आके मतलब खुद काट के वो लोग बेचते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है, वो ट्राइबल्स के बारे में एक्चुअली नहीं सोचते थे। वो क्या करते थे, दे यूज टू ब्रिंग दिस पॉलिसीज और एक्ट्स, और बाहर के लोगों को वो लोग स्मगलिंग करने नहीं देते थे, लेकिन वो खुद स्मगलिंग करते थे, ठीक है, उनको काट के वो लोग दूसरी जगह बेचते थे। सो दिस इज द ब्रिटिश पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट अगर देखेंगे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 में आया था। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर्ड द सॉवर्निटी ऑफ ऑल वेस्टलैंड्स, ठीक है, विच बाय डेफिनेशन इंक्लूडेड फॉरेस्ट। वेस्टलैंड मतलब क्या है, मान लो 1865 में वेस्टलैंड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। वो किसी भी एरिया को, जैसे फॉरेस्ट एरिया है, उसको डिक्लेयर कर सकते थे एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। 1878 में उन्होंने क्या किया, जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन, इसको वेस्टलैंड बोलते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है, सूखा एरिया है, तो उसको भी उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के एम्बिट में डाल लिया, ठीक है, अंडर एम्बिट। एम्बिट मतलब क्या होता है, अंडर द, यू कैन से अंडर द फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो ये एरिया जैसे वेस्टलैंड है, ए वाला एरिया, बी वाला एरिया है। सो वो लोग क्या करते हैं, देखते थे कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई इकोनॉमिक, जैसे कोई मिनरल वगैरह मिलता है, डायमंड वगैरह मिलता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1878 वो लोग इस वेस्टलैंड को भी क्या करेंगे, फॉरेस्ट के डेफिनेशन में लाते थे, ठीक है, दे यूज टू डू दिस। दिस एक्ट एनेबल द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिमार्केट रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। The forest rights were refused in case of protected forest, while some privileges were given to the local people by the government, which can be taken away anytime, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, जो ये वाला एरिया है, इसको यूजुअली क्या प्रोटेक्टेड एरिया बोल देते थे। वो लोग खुद यहाँ पे मिनरल माइनिंग करने आते थे, लेकिन दूसरों को नहीं देते थे, और ट्राइबल्स को अप टू सम एक्सटेंट यहाँ पे रिसोर्सेज यूज़ करने देते थे। बट वो जो वो लोग अलाउ करते थे ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ करते थे ट्राइबल्स को यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए, या इस फॉरेस्ट में ऑपरेट करने के लिए, वो भी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपनी खुशी में था। मतलब अगर वो लोग चाहते, कल ऐसे हो सकता है कि वो लोग ट्राइबल्स को मना भी कर दे, यहाँ पे मत आओ, आप लोग फॉरेस्ट मत लो, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस या फॉरेस्ट रिसोर्स को मतलब पेड़ वेड़ मत काटो, ठीक है, ऐसे करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस एक्ट के अंदर उन्होंने जो आपके फॉरेस्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बना दिया रिजर्व फॉरेस्ट, एक को बनाया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक को बनाया विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। सो रिजर्व फॉरेस्ट में मतलब, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये दोनों पूरा कंप्लीटली वो लोग कंट्रोल करते थे ब्रिटिशर्स। विलेज फॉरेस्ट को अप टू सम एक्सटेंट यू कैन से ऑटोनॉमी देते थे विलेजर्स को, ठीक है। So it attempted to regulate the collection of forest produce by forest dwellers, and some activities declared as offences and imprisonment and fines भी impose करते थे। अगर आपने मान लो, सपोज मैं एक ट्राइबल हूँ, ठीक है, एंड आई एम डिपेंडेंट, माई लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट ऑन दिस प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैं अपनी जगह में ही जाके मतलब पेड़ नहीं काट सकता, या आई कैन नॉट यूज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ द प्रोटेक्टेड रिजर्व। बाहर के लोगों का तो भूल जाओ, अगर आई एम द लोकल ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट, मैं भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकता इफ द गवर्नमेंट वांट्स, ओके। सो मुझे भी पेनलाइज कर सकते हैं, फाइन कर सकते हैं, इम्प्रिजन कर सकते हैं, ठीक है। सो दे ट्राई टू एस्टेब्लिश द स्टेट कंट्रोल ऑफ अ फॉरेस्ट, ठीक है। सो अभी अगर देखो आप लोग, अभी के टाइम पे अगर कंपेयर करोगे, सो गवर्नमेंट ने अभी धीरे धीरे किया क्या, इस चीज़ को डिसेंट्रलाइज किया है। दैट मीन्स आपको पता है ना, जैसे अमृत वृक्ष आंदोलन गवर्नमेंट ने शुरू किया है इस साल, असम स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, असम गवर्नमेंट ने। सो अमृत वृक्ष आंदोलन के अंदर क्या है, आप पेड़ लगाओ घर पे, अपने ही प्रीमाइसेस में, अपने ही लैंड में लगाओ, और ये पेड़ अगर बड़ा हो जाएगा आफ्टर 5 to 6 years, इसको आप काट भी सकते हो, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ब्रिटिश के टाइम पे देखा जाए तो ऐसा था, मतलब वो मनमानी करते थे। दे यूज टू ब्रिंग द फॉरेस्ट अंडर देयर ओन कंट्रोल, और यू कैन से स्टेट कंट्रोल, स्टेट मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या था यहाँ पे, टू कंसोलिडेट ऑल द प्रीवियस एक्ट्स। जो 1927 वाला था वो एक्ट किस लिए लाया था, क्योंकि 1865 वाला एक्ट था, 1978 वाला एक्ट था,
ठीक है, सॉरी 1878 वाला एक था, 1865, ये अलग अलग एक्ट्स के वजह से क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके 1927 वाला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लाया था। दूसरा क्या है, दे टू गिव द गवर्नमेंट द पावर टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट, जैसे हमने देखा था 3 क्लासेस उन्होंने बना दिया फॉरेस्ट का, राइट। एक को बनाया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, एक को बनाया रिजर्व फॉरेस्ट, एक को बनाया विलेज फॉरेस्ट, ऐसे उन्होंने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया ताकि वो लोग यहाँ पे मतलब अपना राज चला सके, और विलेज वाला फॉरेस्ट जो है वो कॉमन लोगों के लिए छोड़ दो, ठीक है, ऐसे करते थे। देन टू रेगुलेट द मूवमेंट एंड ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड, जैसे भी आपको मतलब ड्यूटी देना होता है, ड्यूटी मतलब टैक्स, ठीक है, लिवाइबल एंड टिम्बर, तो वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूसर टिम्बर में भी वो लोग मतलब टैक्स लगाते थे। सपोज आप मान लो आप विलेज फॉरेस्ट में आपने कुछ यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन मतलब पेड़ वेड़ लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने खुद का एक फॉरेस्ट डेवलप किया। अगर आपको मान लो आपको प्लेस मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, ए से बी जाना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कोई अगर पोल मतलब टोल हो गया, यहाँ पे टोल रहते थे ब्रिटिश के टोल, या इसको नाका भी बोलते हैं, ठीक है, टोल नाका। सो ये अगर गिरता था तो क्या होगा, इफ़ यू गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे तो आप खुद का ही फॉरेस्ट को आपने यहाँ पे क्या किया, इसके रिसोर्सेज को बेचने के लिए ए से बी पॉइंट गए। सो ए से बी आप जब जाएंगे तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर एरिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपको 1927 वाले एक्ट में उन्होंने किया था। ठीक है, फिर हमने देखा वो फॉरेस्ट, आई मीन रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, ये सब बना दिया, डिमार्केट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ फॉरेस्ट उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने फॉरेस्ट के ऑफेंसेस को भी डिफाइन किया कि कुछ आपको, जैसे आप अगर रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जाओगे, देन यू विल बी लिवाइड पेनल्टीज, ठीक है, फॉर वायलेशन, एंड टू मेक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मोर अकाउंटेबल, ठीक है। सो ये सब चीज़ें कुछ आप बोल सकते हो, दिस आर रिलेटेड टू द 1927 एक्ट्स। ओके, फीचर्स अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया इज डन अंडर दिस एक्ट, 1927 वाला एक्ट आपको अगर पता है वो बहुत दिन तक चला, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1927 है वो चलता रहा, ठीक है। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज किया कि वो क्या है, मतलब दिस एक्ट इज एक्सप्लॉइटिंग द ट्राइबल्स एज वेल एज जो लोकल पीपल है, या एंटरप्रेन्योर जो है, या जो बिजनेसमैन है, उनके साथ मतलब ये नाइंसाफी है, राइट। सो स्पेशली द लोकल पीपल, इंडिजिनियस पीपल जो है ट्राइबल्स, उनके साथ वो नाइंसाफ़ी है, इसलिए बाद में इसको रिपेल कर दिया गया 1927 वाले एक्ट को, ठीक है। फिर रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, अनलेस परमिटेड। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ऐसा था कि आप कुछ कर सकते हो, मतलब एवरी एक्टिविटी इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। आप प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जैसे कुछ ना कुछ कर सकते हो, जैसे आपने कुछ टूरिज्म किया, घूमने गए, ठीक है, वहाँ पे पिकनिक किया, कुछ ना कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर कभी गवर्नमेंट को लगा कि ये चीज़ से कुछ उनको मतलब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोहिबिशन दे सकते हैं उस एरिया में। अगर प्रोहिबिशन दे दिया तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट की तरह बन जाता था, ठीक है, तब तक कोई टेंशन नहीं। और विलेज फॉरेस्ट में यहाँ पे क्या था, रेस्ट्रिक्शंस कम था, ठीक है। फिर हमने देखा था जो टिम्बर पहले चोरी होता था उसके लिए पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, एनक्रोचमेंट वगैरह होता था। सो इसको भी एड्रेस करने के लिए इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 लाया गया। फिर द एक्ट ऑल्सो प्रेस्क्राइब्स द क्रिएशन ऑफ ए फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप काइंडली नोट कर लीजिए। इंडिया का जो अभी या असम का भी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो किससे बना था एक्चुअली, इट डेट्स बैक टू 1927। सो 1927 जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927, इसके बाद ही क्या हुआ आपका हर स्टेट में, ठीक है, हर प्रोविंस में, उस टाइम पे स्टेट नहीं बोलते थे हम लोग, प्रोविंस में, तो एक एक स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या आप बोल सकते हो प्रोविंशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने लगे, ठीक है। और उनका काम क्या था, टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस द एक्ट ऑफ 1927, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, रिजर्व फॉरेस्ट था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पे दे दिया है क्या क्या चीज़ इसमें आता है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता था, रिजर्व फॉरेस्ट आर मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट को आप बोल सकते हो थोड़ा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पे कम होता है, सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन किसका होगा, रिजर्व फॉरेस्ट का होगा, और सबसे कम किसका होता है, विलेज फॉरेस्ट का। तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता था, रिजर्व फॉरेस्ट आर मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एंड आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिए, रिजर्व फॉरेस्ट कौन डिक्लेयर करता है, इट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और रिजर्व फॉरेस्ट किसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इट कैन बी एनी फॉरेस्ट लैंड, हमने डेफिनेशंस देखा था अलग अलग फॉरेस्ट का, राइट। सो उसमें से कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेस्ट लैंड है, क्योंकि हमने देखा था ना 1865 के बाद जो 1878 वाला एक्ट है, इसमें क्या हुआ था, वो वेस्टलैंड को भी उन्होंने फॉरेस्ट में ला लिया, ठीक है। सो 1927 के जो एक्ट है उसमें भी ये मतलब वेस्टलैंड वाला कॉन्सेप्ट चालू रहा, ठीक है, ये कंटिन्यू रहा। दैट मीन्स यू कैन द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैन डिक्लेयर एनी वेस्टलैंड एज ए फॉरेस्ट लैंड
और वो लोग मतलब सपोज मान लो अभी असम का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है 1927 में, उनको अगर लगा किसी पर्टिकुलर एरिया को हमको रिजर्व फॉरेस्ट डालना है तो वो डाल सकते हैं, या किसी को प्रोटेक्शन स्टेटस अगर है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डाल सकते हैं, किसी को विलेज फॉरेस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए प्रोटेक्टेड फॉर अभी और एक चीज़ यहाँ पे है, रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता था, लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड, मैंने बोला था ना, अनलेस आपको कोई फॉरेस्ट ऑफिसर अलाउ करता है, ठीक है, तो कर सकते हो, लेकिन अनलेस यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, अनलेस यू आर नॉट अलाउड यू आर प्रोहिबिटेड टू गो टू सच फॉरेस्ट। इनफैक्ट जो आप अगर ट्राइबल भी हो तो ट्राइबल अपने खुद के जगह में भी वो लोग अगर पर्टिकुलर मान लो अभी मैं यहाँ पे रहता हूँ एक एरिया में, ठीक है, मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट था तो मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया क्या, ये पूरे एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे यहाँ से घर निकालना पड़ेगा, ठीक है, वाई, बिकॉज आई एम नॉट प्रोहिबिटेड। सो ऐसा होता था, ट्राइबल राइट्स वायलेट हो रहा था। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या था, स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है, उसको एम्पावर करता था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एम्पावर करेगा टू कॉन्स्टिट्यूट एनी लैंड अदर देन द रिजर्व फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया। So protected forest over which government has the property right and power to issue rules. So usually protected forest में क्या होता था, कोई टेंशन नहीं है नॉर्मल टाइम्स में, लेकिन कुछ अगर गवर्नमेंट ने मना किया तो ये नहीं करना है, मतलब आप वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता था, स्टेट हैज़ बीन यूज टू एस्टेब्लिश कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल क्या करता था ओवर द ट्रीज हुज टिम्बर फ्रूट एंड अदर नॉन वुड प्रोडक्ट्स हैव रेवेन्यू राइजिंग पोटेंशियल। सो वो लोग कितने मतलब आप बोल सकते हो चालू है, देखिए आप यहाँ पे कि अगर उनको लगा कि उस एरिया से बहुत सारे टिम्बर मतलब लकड़ी फ्रूट या नॉन वुड प्रोडक्ट्स जो जिसका मतलब मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करते थे, यूजुअली वो लोग तो खोल के रखते थे, लेकिन वो लोग फिर जब देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं या फ्रूट्स वगैरह नॉन फूड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो लोग इसको मतलब तब क्या करते थे, वो मना कर देते थे कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते इनके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन और बढ़ा देगा, और बाद में उसको अगर देखा कि यहाँ पे मतलब लोग बाहर से फिर भी आ रहे हैं, तब उसको रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब स्टेटस मिल जाता था, ठीक है। सो वो स्टेट कंट्रोल कर लेते थे पूरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। फिर विलेज फॉरेस्ट वो था इन विच द स्टेट गवर्नमेंट मे असाइन टू एनी विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, टू और ओवर एनी लैंड विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ए रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब विलेज फॉरेस्ट में ऐसा था कि अब मान लो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट जो पहले इन दोनों के साथ करता है, ठीक है, वो सेम चीज़ अभी कम्युनिटी खुद कर सकते हैं, तो सम एक्सटेंट ऑफ यू कैन से उन्होंने यहाँ पे ऑटोनॉमी रखा था, मतलब जो आपके लोकल कम्युनिटीज़ है या विलेज कम्युनिटीज़ है उनको भी मतलब ओनरशिप दिया था, ठीक है, थ्रू द विलेज फॉरेस्ट। सो विलेज फॉरेस्ट में क्या होता था, विलेज के अंदर अगर कोई फॉरेस्ट है तो उसमें जो भी मतलब रिसोर्सेज होंगे, फल फूल जो भी होंगे या उट लकड़ी वगैरह, वो लोग यूज़ कर सकते थे विद इन द विलेज, ठीक है। बट उसमें भी अगर एक विलेज से दूसरे विलेज गए तो आपको मैंने बोला था ना टोल लगेगा बीच में, ठीक है, तो वो लोग टैक्स लेवी करते थे ऐसे। ड्रॉबैक्स क्या क्या था, ड्रॉबैक्स ये था कि गवर्नमेंट क्लेम द एक्ट एम टू प्रोटेक्ट, आपको पता है ना ये एक्ट किस लिए लाया था, उन्होंने ये बोला था कि हमको मतलब जो वेजिटेशन कवर है इंडिया का उसको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये नहीं था एक्चुअली। द रियल मोटिव वाज दैट एक्ट, देखिए मैंने जो बोला था, ब्रिटिश का क्या था पॉलिसी, टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब एक साइड वो बोल रहे कि लोकल कम्युनिटीज़ काट के मतलब वेजिटेशन कवर को ख़त्म कर दिया, बाहर के लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब एक एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया तो वो लोग खुद वो चीज़ करने लगे, ठीक है। सो दिस एक्ट गेव इमेंस डिस्क्रिशन एंड पावर टू द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी, तो जो आप बोल सकते हो फॉरेस्ट राज शुरू होने लगा, ठीक है, और जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनके ऊपर हैरेसमेंट होने लगा। Moreover, it led to depriving the nomads and tribal people of their age-old rights and privileges. अभी फॉरेस्ट में यूजुअली क्या होता है, जो फॉरेस्ट के लोग होते हैं वो लोग फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस है उनके ओनर्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है, वो पूजा भी करते हैं उन पे फॉरेस्ट में, उनकी कल्चरल या वैल्यूज से रिलेटेड है। बट आप अगर देखेंगे ब्रिटिश ने क्या किया, उन लोगों को डिप्राइव किया अपने राइट से, और खुद एक सब साइड वो बोल रहे हैं कि हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट को, इसलिए हम लोग उसको रिजर्व प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का मतलब स्टेटस दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे एक्चुअली ब्रिटिश का रियल मोटिव क्या था, द ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्सप्लॉइट दिस फॉरेस्ट, ठीक है। फिर देखिए द रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल फ्रॉम द टिम्बर ओवरशेडोड द अदर वैल्यूज लाइक बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये भी था। अभी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक साइड पे तो ट्राइबल्स या लोकल या स्मगलर्स को तो छोड़ो, आप मतलब लोकल जो पॉपुलेशन है उनको ही कुछ अपनी जगह में ही एरिया में वो लोग कुछ करने नहीं देते थे, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन वो लोग करते थे, इसलिए क्या हुआ आपका
जो अलग अलग देखा जाए तो इन लॉन्ग टर्म बायोडाइवर्सिटी, सॉइल इरोशन वगैरह बढ़ने लगा, ठीक है। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। क्रिटिसिज्म क्या है? सो दिस फॉरेस्ट वेर नोटिफाइड बट ट्राइबल राइट्स वेर नॉट रिकॉग्नाइज। ट्राइबल्स हमेशा मतलब इफ यू सी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो लोग को हमेशा पिछड़ा या पिछड़ा जाति का स्टेटस दिया गया एंड देयर राइट्स वेर नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है। दिस मेड द ट्राइबल्स अनलॉफुल सेटलर्स इन द फॉरेस्ट। इसलिए आप देखोगे, आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज़, ठीक है, जैसे आप मान सकते हो अलूरी सीतारामा राजू। अलूरी सीतारामा राजू का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। फिर आपका जो बिरसा मुंडा है, मैं लिख देता हूँ फुल नेम, अलूरी सीतारामा राजू, जो आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। फिर आपका बिरसा मुंडा है, जो मुंडा रेबेलियन हुआ था, बिरसा मुंडा। सो दिस पीपल took up arms against the Britishers। क्यों? Because they were also forest dwellers at some time, ठीक है। ये लोग भी उनके फॉरेस्ट राइट्स, उनके हक छीने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मतलब इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने अगर देखेंगे तो उन्होंने मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट आर्म्स उठाया था, ठीक है। फिर फाइनली द हिस्ट्रिक रॉन्ग वाज करेक्टेड बाय द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2006। सो देखिए आप 1927 से आप जस्ट इमेजिन कीजिए, 1927 में पहला एक्ट कब आया था? 1858। फिर 65 को आया था, फिर 1927 को आया था। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज़ाद, अभी देखिए हम लोग आज़ाद, हमको आज़ादी मिला 1947 में। तो आप देखिए 1947 के बाद इतने सालों बाद 2006 को आपका फॉरेस्ट राइट इसको एमेंड मतलब ठीक किया। जो पहले गलती किया था, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर जो अन्याय चल रहा था, उसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया आफ्टर इंडिपेंडेंस 2006 में, इतना साल लगाया उन्होंने, राइट। सो दिस शुड हैव बीन डन अर्लियर एक्चुअली, ठीक है। एनीवेज जो भी है, अभी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2006 आया है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है बीच में कुछ नहीं किया, लेकिन इस एक्ट को मतलब 1927 के एक्ट को अमेंड करने में, मतलब अमेंड इतने साल मतलब अमेंड करते रहे, ठीक है। नया एक्ट लाया नहीं था, बट एक मतलब एकदम आप बोल सकते हो ब्रांड न्यू एक एक्ट लाया, ठीक है। 1927 में जो फॉरेस्ट एक्ट है, इसको हम कुछ रूल्स या कुछ अमेंडमेंट के थ्रू आज़ादी के बाद भी इसको चलाता रहा, कॉलोनियल जो अभी आप मान सकते हो। इसलिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आईपीसी और सीआरपीसी जो है, ठीक है, और एक ये है एविडेंस एक्ट। आपको पता है ये तीनों क्या हुआ अभी, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, आपको पता होगा, एक है बीएनएस, एक है आपका बीएनएसएस, और एक है बीएसएस, भारतीय साक्ष्य संहिता। सो एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता से रिप्लेस किया, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस किया, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से मतलब रिप्लेस किया है, ठीक है। सो दिस आर सम ब्रांड न्यू एक्ट्स। तो देखिए गवर्नमेंट को कितना साल लगा। ये आईपीसी जैसे आप देखो 1870 में आया था, राइट, ये 1973 को आया था, और सीआरपीसी आई थिंक 1883 को आया था, मोस्ट प्रोबेबली चेक कर लीजिए। सो इतना साल लगा गवर्नमेंट को। एनीवेज जो भी हुआ अभी अच्छा हुआ। 1 जुलाई आपको पता है, 1 जुलाई 2024 से क्या हो रहा है, 2024 से ये बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसएस, ये 3 एक्ट अभी मतलब करेंटली इट्स वर्किंग, ओके। सो फिर इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आपका 1952, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया था, लेकिन फिर भी आप देखिए 1927 वाला जो फॉरेस्ट एक्ट था वो चल रहा था, ठीक है। एट द सेम टाइम ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो चल रहा था। 1980 में जो लाया था, दिस इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर आपका आया था इस एक्ट को, फिर भी 1927 वाले एक्ट को मतलब नल एंड वॉइड नहीं किया था, ठीक है, मतलब कैंसिल नहीं किया था। सो हर एक एक्ट का क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका ड्रॉबैक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये स्टोरी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं है कि जो हम लोग का क्लास है इसमें ही लाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा भी वीडियोस आपको लाता रहूँगा, आप देखते रहिए। सो ज़्यादा नहीं है अभी, 5-6 स्लाइड से कंजर्वेशन रूल से यहाँ पे फॉरेस्ट पॉलिसी है। ये वाला 2006 वाला जो एक्ट है, इसमें पहली बार मतलब फॉरेस्ट ड्वेलर्स को आप बोल सकते हो उनको अपना हक मिला, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो ये वाला पार्ट है कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन, मतलब कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 में आया था। इसमें मतलब जो कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक पेड़ काटा तो 2 पेड़ लगाया, ठीक है, इस टाइप का था। अगर आप 2 पेड़ नहीं लगा सकते तो उतना पैसा दे दो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो आपके लिए दूसरी जगह किसी फॉरेस्ट एरिया में लगा देंगे 2 पेड़, ठीक है, ऐसा है। सो मैं ये समझा दूंगा आपको कैसा है पूरा सिस्टम। सो ये हम पढ़ने वाले हैं। देन विल गो टू द एनवायरनमेंट पार्ट। सो करते रहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको मेंस में लगेगा, प्रीलिम्स में नहीं चाहिए। सो इतना जल्दी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, समझ के पढ़िए, बट अब लॉन्ग टर्म तक याद रखिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा,
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 पढ़ा, उससे पहले उससे जो रिलेटेड है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है आपका, एक है 1865 वाला, एक है 1878 वाला। इनको पढ़ा, इन दोनों को मर्ज करके ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बनाया गया था। और फॉरेस्ट का डेफिनेशंस देखा अलग अलग, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ऑब्जेक्टिव्स देखा, फीचर्स देखा हमने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का। फॉरेस्ट का टाइप्स देखा, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में समझा, ड्रॉबैक जो थे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, और क्रिटिसिज्म हमने देखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, विल स्टार्ट द इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। ठीक है। सो थैंक यू, एंड एक्स्ट्रा वीडियोस भी मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल ब्रिंग सम एक्स्ट्रा वीडियोस फॉर यू। ठीक है, सो कीप वॉचिंग।